Alright, so we are starting with Registration Act 1908 का quick revision here. So talking about Registration Act 1908, firstly we should know that why there is a need to register any document. And for that matter, let's say why there is a need to register anything written on a piece of a paper. And do we need to register every document? Let's understand with this example. So, here, if I talk about Mr. A is the owner of a property and Mr. B is claiming that I am also the owner of this house. Okay, now how we are going to decide that who is the rightful owner of this particular property? So the answer here is documents. Mr. A has a proper sale deed of how he has acquired these documents and this is registered. So how do court declares that who is the rightful owner, Mr. A or Mr. B? So here we can say that court will declare that Mr. A is the owner. Why? Because there is a sale deed that is registered. So there comes the importance of registered document, that it gives notice to the world that such a document has been registered to prevent fraud and forgeries, to secure the interest of a person. Now if we are taking the same example, Mr. A, यहाँ पे Mr. A ने ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है. So in India, and usually property is a very expensive asset. If a person is paying such a big amount to purchase something, then that should be at least registered, because the risk of fraud and forgeries in it becomes large. So यहाँ पे मिस्टर एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उनके ऊपर एक ओनस डाला हुआ है कि यू गेट दिस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड, सो दैट कल को आपके साथ कोई फ्रॉड एंड फॉर्जरी ना हो, आपका इंटरेस्ट सिक्योर हो, एंड इट इज़ द नोटिस टू द वर्ल्ड दैट सच अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन registered. So why are we registering a document? We've got why are we registering a document? इसके लिए हमें 3 essential मिल गए. Coming on to the further, that documents for which registration is compulsory. Now this act talks about certain documents जिनका registration कराना compulsory है. लॉ ने कहा है आपको अगर इन documents, इन transactions में आप डील कर रहे हो, then उसके documents को आपको mandatorily register कराना है. यहाँ पे primarily we are talking about immovable property. The reason remains same, that immovable property, sometimes people spend their entire life का saving to buy particular immovable property. ठीक है, so that is why we are giving it so much importance that the documents for immovable property have to be registered. अब which immovable property, let's see this. सो यहाँ पे मिसेस ए हैं और मिस्टर ए हैं. दीज आर हस्बैंड एंड वाइफ. दे आर ओनर ऑफ अ लैंड, बट इनके जो बच्चे हैं मिस्टर बी, सी, डी, ई, दे डू नॉट वॉन्ट टू गिव इट टू देम, बट दे वॉन्ट टू मेक इट अ गिफ्ट टू मिस्टर एम. मिस्टर एम को देना चाहते हैं अपनी गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का. सो हेयर वी आर सेइंग, ओके, सो in this example we were seeing कि documents for which registration is compulsory, Mr. and Mrs. A ओनर ऑफ लैंड हैं, वो अपने बच्चों को नहीं देना चाहते अपनी प्रॉपर्टी, इंस्टेड दे वांट टू गिफ्ट इट टू मिस्टर एम. नाउ वी आर सेइंग अगर आपको ये गिफ्ट करना है देन दिस गिफ्ट डीड शुड बी रजिस्टर्ड. अब यही एग्जाम्पल सिमिलर सा इफ़ वी टॉक अबाउट द मूवी बागबान, उससे लिया गया है कि wherein Amitabh Bachchan and Hema Malini wants to give their land not to their kids but to Mr. M who is their caretaker. ठीक है, सो इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. नाउ व्हाई दिस रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी? अगेन immovable property is involved, huge stakes are there, एंड कल को कोई फ्रॉड ना हो, कल को कोई
थर्ड पर्सन आके उस प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट ना बताए, एंड टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन. So again, these three concepts said to give notice to the world, to prevent fraud and forgeries, and to secure the interest of person. Now there are three interlinked points here. अब ये points समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि what is testamentary instruments and what is non-testamentary instrument. So testamentary instrument में एक एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पे है मिस्टर ए ग्रैंडफादर और इनका ग्रैंड चाइल्ड है. तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि आफ्टर आई डाई, ओके, सो यहाँ पे ग्रैंडफादर बोलते हैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को कि दिस वॉच दैट आई एम वियरिंग इट इज़ ऑफ 2 crores एंड वंस आई डाई दिस वॉच इज़ योर्स. नाउ ही इज़ गिविंग हिज वॉच टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रन इन फ्यूचर. ठीक है, आफ्टर हिज डेथ. ठीक है, तो ये एक इंटेंशन है कि ये होगा आफ्टर हिज डेथ. सो दिस इज़ अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होगा. क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिव होगा आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द डेथ ऑफ दिस पर्सन. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है विल एक कोई भी इंसान बनाता है तो वो उसको बनाता है टू बी ऑपरेटिव आफ्टर हिज डेथ. ठीक है, अब वहीं पे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के लिए हम सेल डीड यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट डीड यूज़ कर सकते हैं, अग्रीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारी इंटेंशन है ऑपरेटिव हो, इमीडिएटली हो, फाइनल हो, इर्रिवोकेबल हो. एक सेल डीड अगर आज बन रही है तो मैं फाइनल सेल डीड बना रही हूँ, मैं इर्रिवोकेबल, मैं कल को कोई और क्लेम नहीं कर सकती. एक बारी मैंने सेल डीड पे साइन कर दिए हैं और वो रजिस्टर्ड हो गई है तो, और ऑपरेटिव इमीडिएटली ऑन पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन, इट इज़ ऑपरेटिव इमीडिएटली. सो दिस इज़ अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. अब यहाँ पे वापस आते हैं तो क्या 3 इंटरलिंक पॉइंट्स हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्रिएट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, एक्सटिंग्विश कर रहे हैं एक राइट को, एक टाइटल को या फिर एक इंटरेस्ट को. ये तीनों एक ही चीज़ है. ठीक है, सो एक क्रिएट कर रहे हैं, ऑलरेडी एक क्रिएट कर रहे हैं राइट किसी प्रॉपर्टी में, या फिर डिक्लेयर कर रहे हैं. ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है राइट, हम डिक्लेयर कर रहे हैं. हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है राइट, उसको असाइन कर रहे हैं किसी को, उसको लिमिट कर रहे हैं, उसकी पावर्स को कम कर रहे हैं कि मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आई वांट टू गिव सर्टन टू समवन, तो लिमिट कर रही हूँ मैं. एंड एक्सटिंग्विश, मैं ख़त्म कर रही हूँ उसमें राइट, टाइटल और इंटरेस्ट को ऑफ वैल्यू मोर देन और इक्वल. ऑल राइट, सो जो 3 इंटरलिंक पॉइंट्स हैं हम उनको यहाँ पे देखते हैं. नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रही हूँ मैं, जिसमें आई एम क्रिएटिंग, डिक्लेयरिंग, असाइनिंग, लिमिटिंग या एक्सटिंग्विशिंग अ राइट, टाइटल और इंटरेस्ट. दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग. राइट, टाइटल और इंटरेस्ट को मैं क्रिएट कर रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ, असाइन कर रही हूँ, लिमिट कर रही हूँ, एक्सटिंग्विश कर रही हूँ ऑफ वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 100 इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश, ये सब की बातें मैं कर रही हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट को लेके. फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट, अगर आज मेरी लैंड है और उसके लिए मैं बोल रही हूँ मैं इसको लीज़ पे देना चाहती हूँ फॉर 5 years. नाउ हेयर आई एम क्रिएटिंग अ लीज़ डीड, आई एम क्रिएटिंग अ राइट. ठीक है, राइट मैं एक क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिक्लेयर. नाउ लेट्स सपोज देयर इज़ अ property of Mr. A and Mr. B. बोथ आर ब्रदर्स, दोनों ही ओन करते हैं. तो वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हुए दैट वी आर जॉइंट ओनर्स. सो यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रहा है. असाइनमेंट मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हो आप एक राइट को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है टू समवन एल्स. लिमिट कर रहे हो, ऑलरेडी एक राइट जो एग्जिस्ट करता है आप उसको लिमिट कर रहे हो. मतलब यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ऑलरेडी आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है. फॉर एग्जांपल मैंने अपने किसी टेनेंट को दी हुई है, बट मैं उसे रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ कि यू कैन नॉट यूज़ द टेरेस एरिया
तो वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लिमिट कर रही हूँ, ऑल्टर कर रही हूँ एग्जिस्टिंग राइट को, और एक्सटिंग्विश करना यानी कि ख़त्म कर देना राइट। सो दीज ऑल थिंग्स, मतलब प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप बेसिकली कुछ भी करते हो, एक राइट को क्रिएट कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो या एक्सटिंग्विश कर रहे हो ऑफ वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 100 rupees, then that non-testamentary instrument is required to be registered. Now why are we talking about this value of more than or equal to 100 rupees is because this law is very old, and at that point of time 100 rupees had value. So right now 100 rupees does not have value, but at that time it had value. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि एक ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो एक्नॉलेज कर रहा है रिसीट मतलब रिसीविंग या फिर पेमेंट ऑफ अ कंसिडरेशन, आई हेयर बाय पे और आई हेयर बाय अग्री दैट आई हैव रिसीव्ड। तो ये दोनों चीज़ों को किस चीज़ में, सेम वही पॉइंट, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश ऑफ राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 100 rupees इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर एक सेल डीड बन रही है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, तो मिस्टर सेल डीड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सेल डीड को हमें यहाँ पे करना पड़ेगा रजिस्टर्ड। बट अगर एक और हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं जो एक बता रहा है acknowledging the receipt या फिर payment of consideration of this particular immovable property, then this also requires to be registered. Now coming on to the next point, non-testamentary instrument, same features, declare, assign, limit, extinguish, right, title, interest, but ये आ रहा है एक डिक्री या अवार्ड ऑफ अ कोर्ट से, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिग्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिग्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट or an award when such degree or order or award purports or operates to create, declare, assign, limit, extinguish, whether in present or future, any right or title or interest, whether vested or contingent, of value 100 rupees or upwards in immovable property। ठीक है, जस्ट एक डिक्री है, डिक्री जो कोर्ट से आती है, अवार्ड जो आर्बिट्रेटर देता है, तो वो है यहाँ पे ऑफ द सेम फीचर्स। अब थोड़ा सा इसको एक बार डिटेल में और नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल कि यहाँ पे आई एम गिविंग अ गिफ्ट टू समवन, तो मैं हो जाती हूँ डोनर एंड समवन हु इज़ रिसीविंग बिकम्स डोनी। नाउ if I want to give a gift of my immovable property to Doni, then I will create a gift deed। अब इस गिफ्ट डीड का मुझे रजिस्ट्रेशन भी कराना है, बट ठीक है, मैंने गिफ्ट डीड बना ली और डोनी को हैंड ओवर कर दी। नाउ डोनी हैज़ रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड इट, डोनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एंड नाउ इफ़ आई डाई, तो क्या अगर डोनी उसको गिफ्ट डीड को लेके रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर सकता है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन? द आंसर इज़ नो। रजिस्ट्रार हैज़ टू रजिस्टर सच अ डॉक्यूमेंट इवन आफ्टर माई डेथ। अगर डोनर की डेथ हो जाती है, स्टिल डोनी कैन गो टू रजिस्ट्रार टेकिंग दैट डॉक्यूमेंट एंड इट विल गेट रजिस्टर्ड। इसी एग्जाम्पल में एक और चीज़ ऐड कर देता है कि अगर जस्ट अ सेकेंड, नाउ इसी एग्जाम्पल में अगर मैंने गिफ्ट डीड दी है डोनी के फेवर में, बट कल को मुझे लगता है नहीं, आई वॉन्ट टू गिव इट टू माई चिल्ड्रन ओनली, सो मैं दूसरी गिफ्ट डीड बनाती हूँ अपने चिल्ड्रन को देने के लिए और एक्सप्रेसली रिवोक करती हूँ पहले वाली गिफ्ट डीड जो मैंने डोनी को दी है, और and then I die. So if that donee goes to registrar for registering that gift deed, तो can registrar deny? Most of the people will say कि registrar has to deny it, but the thing is registrar does not have the power टू डिनाई। रजिस्ट्रार आपको डिनाई नहीं कर सकता है। नाइदर डेथ नॉर एक्सप्रेस रिवोकेशन बाय द डोनर इज अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब दैट मैटर माइट गो इन टू द कोर्ट, कोर्ट विल डिसाइड कि कौन डोनी है, किसको गिफ्ट मिलेगा, बट the registrar cannot refuse the documents from registration only on the grounds that neither the death nor the express revocation by the donor can
इज अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो हमने यहाँ पे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का देखा था। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish whether present or in future। whether present or in future आगे चल के भी आपको मिल सकता है, या आज भी अगर मैं राइट में कुछ भी चेंज करूँ ऑफ एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, वेदर वेस्टेड और कंटिंजेंट। वेस्टेड और कंटिंजेंट में मतलब अगर आपको मैं सिंपली राइट ट्रांसफ़र कर रही हूँ, या फिर कंटिंजेंट है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट, if you become a CS then I will gift you this, if this happens, if that happens, then also it is required to be registered। the answer is the मतलब अगर हम लॉजिक देखें तो वेरी सिंपल है, the intention is very clear। immovable property, high stakes are involved, get it registered। no matter you're creating a right, declaring a right, assigning a right, limiting a right or extinguishing a right, but immovable property है registered। प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, राइट कंटिंजेंट है, वेस्टेड है, नो मैटर, गेट इट रजिस्टर्ड। ठीक है, आई होप दीज पॉइंट्स आर सिमिलर, तो जल्दी इसको मेमोराइज करने में ईजी रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वॉज नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट which acknowledge the receipt or payment of consideration on account of creation, declaration, assignment, limitation, extinction of such right, title or interest। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लीज़। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लीज़ फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को लीज़ पे दे रहे हो फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस, मतलब आपने काफ़ी ईयर्स के लिए दिया हुआ है बट वो ईच ईयर रिन्यू हो जाता है, या फिर 1 साल से ज़्यादा का है, या फिर उसका जो रेंट ड्यू है वो 1 साल का बन जाता है, मतलब 1 साल का रेंट वो पे करते हैं, बट इट इज़ फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year, then that has to be registered as well। Next is a document other than a will through which one person authorizes another to adopt his son। अगर किसी भी पेरेंट्स को आज एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं अदर दैन अ विल, ऑफ कोर्स विल यहाँ पे नहीं कवर्ड, विल इज़ अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर एक पर्सन मिस्टर ए वॉन्ट्स कि माई चिल्ड्रन टू बी अडॉप्टेड बाय मिस्टर बी, then also you have to get that document registered। why? because someone's life is at stake। so यहाँ पे भी it is very important to get that particular document registered। नाउ कमिंग ऑन टू अ क्विक रिकैप। सो फर्स्टली हमने क्यों एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ गिविंग अ नोटिस टू द वर्ल्ड दैट सच अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड to prevent fraud and forgeries and to secure the interest of such person because higher stakes are involved। Now section 17 talks about the documents for which registration is compulsory। यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले हमारे पास आ गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फादर एंड मदर डू नॉट वांट to give their property to their children, but instead they wanted to gift it to someone else, their caretaker, and now if they are giving a gift deed of that immovable property to their caretaker, that instrument is to be registered। Similar example from the movie Bagban, not exactly similar but okay। नेक्स्ट 3 points were interlinked। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन कर रहा है, लिमिट कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है एक राइट के साथ कर रहा है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 100, गेट इट रजिस्टर्ड। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेज कर रहा है रिसीट या फिर पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑफ सिमिलर right, title or interest on account of creation, declaration, assignment, limitation, extension of value more than equal to 100 rupees in नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर असाइन कर रहा है एनी डिक्री कोड देता है, अवार्ड आर्बिट्रेटर देता है। सो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है या असाइन कर रहा है ऐसे डिक्री और अवार्ड को जिसने क्रिएट किया है, असाइन किया है, लिमिट किया है, एक्सटिंग्विश किया है एक राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 100। अगर कोर्ट या फिर एक
आर्बिट्रेटर का अवार्ड ये इंटाइटल कर रहा है, ये एक चीज़ बता रहा है कि एक राइट को डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या एक्सटिंग्विश कर रहा है, और आप इस डिग्री को या फिर इस अवार्ड को आप ट्रांसफ़र करते हो, देन दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रजिस्टर्ड. ठीक है. नाउ there was lease of immovable property, lease of year to year basis exceeding 1 year and which reserves a yearly rent. Document other than a will through which one person authorizes another to adopt his son. Okay, now next comes the, let's see this case law also over here. Delay in registration of a gift does not postpone its operation. Section 123 Transfer of Property Act 1882 merely requires the donor should have signed the deed of gift. Hence, a gift deed can be registered even if the donor does not agree to its registration. अगर agree भी नहीं करता, so everything in its power he has done. If he has created a gift deed and he has given it to the donee and donee has accepted, the transaction is completed. Now the registrar will not refuse in that I am not registering this document. If there is a question of or there is a dispute, then the court will decide. A document which is plainly intended to be operative immediately is non-testamentary instrument. Description of a document as a will not make it a will. The expression create, assign, limit, extinguish imply a definite change of legal relation to a property by an expression of will embodied in the document. It implies a declaration of will. The expression declare has also been interpreted on same lines. It does not mean a mere declaration of fact, but connotation a writing effectuating a change of relation. We have seen this all. Now coming to exceptions to section 17 subsection 1, यानी कि सेक्शन 17 में हम बात कर रहे हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये ऑप्शनली रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं. इनमें से देयर आर वेरी इतने सारे पॉइंट्स में से यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट राइट 5 पॉइंट्स इन योर एग्जाम इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्विकली देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को. एनी कॉम्पोजिशन डीड. सो कॉम्पोजिशन डीड क्या होती है कि लेट्स सपोज आई ओन अ बिजनेस टुडे and I want people to fund it, so I asked 3 of my friends to fund it and all of them gives me 1 lakh rupees. Now Mr. A, Mr. B, Mr. C are my friends. They all of them have given me 1 lakh rupees. Now if my business fails, अगर कल को मेरा बिज़नेस फेल हो जाता है एंड मैंने अपने सारे क्रेडिटर्स को बुलाया, ए बी सी को बुलाया, मैंने कहा लिसन आई कैनॉट रीपे यू द इंटायर 1 लाख विच आई ओन फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, बट अगर आप सेटलमेंट कर लो तो 60% ऑफ द अमाउंट मैं आप सबको दे दूँगा. एंड नाउ ऑल ऑफ देम अग्री, सो दिस इज़ अ कॉम्पोजिशन डीड बनेगी. सो हियर अगर आप कॉम्पोजिशन डीड बना रहे हो तो आपको उसको रजिस्टर करवाना ऑप्शनल है. कॉम्पोजिशन डीड. एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है. एनी डिबेंचर इशूड बाय एनी सच कंपनी. Debenture issued by any such company. Any endorsement upon or transfer of debenture. So endorsement या फिर transfer. ठीक है. Any document other than the document specified under clause E above, creating merely a right to obtain another documents which will, when executed, create, declare, assign, limit or extinguish any such right, title, interest. देख लेते हैं clause E क्या है. क्लॉज ई इज़ रिलेटिंग टू द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. ठीक है. सो क्लॉज ई के बारे में कह रहे हैं एनी डॉक्यूमेंट अदर दैन द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ई अबव, क्रिएटिंग मियरली अ राइट टू ऑब्टेन अनदर डॉक्यूमेंट विच विल व्हेन एग्जीक्यूटेड. मतलब इट इज़ मियरली अ डॉक्यूमेंट विच इज़ स्टेटिंग टू ऑब्टेन अनदर डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट में आप इंटरेस्ट के साथ या राइट के साथ कुछ कर रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल. ठीक है. एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट. डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट.
नाउ हमने ऊपर कौन सा देखा, सिर्फ वो वाली डिक्री हमें या वो वाला ऑर्डर ऑफ कोर्ट हमें रजिस्टर करवाना है जिसमें हम इसकी बात कर रहे थे, राइट। तो इसका मतलब अगेन द एम्फेसिस इज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनी डिक्री और अ कोर्ट ऑफ अ कोर्ट, आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। एनी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको गवर्नमेंट दे रही है। अब अगेन गवर्नमेंट इज गिविंग यू, सो आप अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, यू आर गोइंग टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू गेट इट रजिस्टर्ड, बट नाउ गवर्नमेंट इज गिविंग you immovable property. Next is any instrument of partition made by revenue officer. So partition deed. Okay, so any 5 points you can remember: composition deed, shares in joint stock company, debentures of any company, endorsement or transfer of such debentures. ये वाला पॉइंट एक बार ही देख लेंगे। ओके, ये वाला पॉइंट हम ऊपर के साथ ही पढ़ेंगे कि अगर एक कोर्ट ने या फिर एक अवार्ड ऑफ एन आर्बिट्रेटर का, उसमें क्या हो रहा है, इट इज़ प्लेनली अ डॉक्यूमेंट विच इज़ स्टेटिंग टू ऑब्टेन अनदर डॉक्यूमेंट, और उस अनदर डॉक्यूमेंट के थ्रू देर विल बी क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन और एक्सटिंग्विशन ऑफ एनी सच राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। तो आपको उसको भी रजिस्टर्ड करवाना कंपल्सरी नहीं है। Then any decree or order of the court, any grant of immovable property by the government, or any instrument of partition made by revenue officer. Further, any order granting a loan or instrument of collateral security granted under the Land Improvement Act or Land Improvement Loans Act. ठीक है, any order granting loan made under Agricultural Loan Act or instrument for securing the repayment of loan made under that act. ठीक है, सो नाउ हेयर जस्ट रिमेंबर एनी 5 ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पे द इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर, यहाँ पे स्टेक्स आर लेसर, देर आर नॉट मच स्टेक्स इन्वॉल्व, और यहाँ पे गवर्नमेंट इज़ इटसेल्फ गिविंग यू, दैट इज़ वाई हमने उसको ऑप्शनली रजिस्ट्रेशन में डाल दिया है। ठीक है, ओके। Okay, now coming on to the further concept, section number 18, documents of which registration is optional. Now ऐसे documents जिनका registration optional है, तो अगर मैं कह दूँ, अगर आप 17 section 17 को याद रखो कि किन documents का registration compulsory है, other than those every document requires to be registration is optional. बट यहाँ पे हमने कुछ specified करे हुए हैं points, let's see them. I don't think I've written it somewhere. Okay, let's discuss it like this only. Section 18, all documents that are not included in section 17 of the Registration Act 1908 have the option of optional registration. Examples: a will or an instrument related to movable property. ठीक है, पॉइंट ए पे आ जाते हैं। Instrument other than instrument of gifts and wills which purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or future, any right, title or interest, whether vested or contingent, of value less than ₹100 in immovable property. हमने वहाँ पे क्या बात की थी, more than equal to ₹100, यहाँ पे less than ₹100 की बात करें तो that becomes optionally registration document, value of less than ₹100. Next is instrument acknowledging the receipt or payment of any consideration on account of creation, declaration, assignment, limitation or extinction of any such right, title or interest. ठीक है, ओके। सो हेयर मिस्टर ए और मिस्टर बी आर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन जिसमें उसमें बात कर रहे हैं अबाउट एक्नॉलेजिंग द रिसीट और पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन ऑफ एनी सच राइट। इसी के रिगार्डिंग हम ये वाला पॉइंट देखेंगे कि लेस दैन ₹100 इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग ईयर and leases exempted under section 17. So leases of property अगर हम lesser than 1 year कर रहे हैं
या फिर जो 17 सबसेक्शन 2 में फॉल कर गए हैं वो सारे ऑप्शनली रजिस्ट्रेशन रिक्वायर करते हैं। बट अगर हम इसमें देखें प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द केसेस हम अगर अपने अराउंड देखें तो लीज जो भी बनाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो उसको 12 मंथ्स या फिर 1 साल से ज़्यादा नहीं रखते हैं। वाई द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर आप उसको 11 मंथ्स रखते हैं। सो यूजुअल प्रैक्टिस इज ऑफ 11 मंथ्स। Next is instrument transferring or assigning any decree or order of a court or any award when such decree or award or order purports or operates to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether vested or contingent, of a value less than rupees 100 to in immovable property. Similar, वेरी सिमिलर, लेस दैन रुपीज़ 100 की बात करें। सो 3 एग्जाम्पल्स वेरी मच सिमिलर। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, लेस दैन रुपीज़ 100 की, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट अदर दैन विल्स विच परपोर्ट और ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश एनी राइट और इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी की। ऑल राइट, देन कम्स okay, then comes wills. Wills का registration is optional and the other documents not required to be registered by section, मतलब this is I think very much sufficient कि जो section 17 में covered हो गए उनके अलावा जो बचे उनका registration is optional, but some points we have written it here, so this could be asked in your examination, so this becomes very important from exam point of view. Okay, coming to further concepts. अब